और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का हैदराबाद दौरा आज है और बता दें निवेश और उद्योग विस्तार पर इस दौरान वो फोकस करते भी नजर आएंगे। तो देखिए ये बड़ी जानकारी है जहां छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय हैदराबाद दौरे पर हैं और ये लाइव तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। In India, like generally, this when real-time power is generated, it is used, and the extra power which is generated, it gets wasted. But the net metering system in Chhattisgarh allows to bank this power, and the government at the end of the year, they calculate what is the power used by us, what is the surplus power, and all the surplus power is duly paid by the government to the investor of the solar plant. This encouraged us, this policy encouraged us, and we installed a 17 megawatt power plant there in Chhattisgarh within 1 year. And surprisingly, we realized that most of the solar plant gets free or get their payback in 7 to 8 years in other parts of India. We were fortunate enough to get this payback within 2.5 years to 3 years of the payback of the solar system. Yeah, we were fortunate enough to use this power in our captive, in the captive form in our malls there in Raipur, and that was a great investment again. Now encouraged by this solar thing, we are considering entering into hydropower. Again, I would say hydropower policy of Chhattisgarh is a unique policy because the PPA of hydropower in our state is for 40 years, which is generally 25 to 30 years in other parts of India. This is highly encouraging, and I would say this has helped our group to enter into various industries in the past 4 or 5 years particularly. It's important to mention the efforts towards elimination of Naxalism in Bastar by our Honorable Chief Minister in the past 2 years. After his taking the oath of as a Chief Minister of Chhattisgarh, we saw remarkable change and improvement in the efforts in Chhattisgarh's Bastar region, which was known for Naxalism. Not only Bastar was known for Naxalism, Chhattisgarh की भी branding एक Naxalite state की होती थी. And this efforts of Honorable Chief Minister and our Central Minister Shahaji, we got Bastar as a free region for development growth. I see immense growth potential in the coming years in this part of Chhattisgarh, which is very rich in agro-forest and which is very rich in mining resources, natural resources. Friends, as I said, our growth and diversification to other industry is only because of willingness of our state government to engage with investor and find solutions. My humble request to all of you, to all the distinguished investors today present in this hall is very simple. Please come to Chhattisgarh. Please experience Chhattisgarh. Please visit, please explore. As they say, seeing is believing. Just come, just see, and I am sure you'll be ready to invest in Chhattisgarh. Why I say so? Because not only the government is good, the natural resources are good, the atmosphere is conducive, people here are also very good. We very fondly say, we all of us very fondly say, and हमारे चीफ मिनिस्टर तो अक्सर अपनी स्पीच में ये बात कहते हैं जब भी वो छत्तीसगढ़ से बाहर जाते हैं, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया. यहाँ के लोग इतने सिंपल हैं, इतने हेल्पफुल हैं कि आपको ऐसा लगेगा नहीं कि in spite of having so many steel industries, well, we never felt as a competitor, as a new entrant who can be deterrent to the growth of other steel industries, other manufacturers who are working there for 25-30 years. So यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि आप जब आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि it's a comfortable place to work in. We are not new to this state. We are a global citizen and we are a global person here. Minimal nuisance is there, supporting environment is there. As someone who has invested and grown here, I was born and brought up in Raipur. My father was here. We are here from past 80 years in Chhattisgarh. So one day, we also came here as an outsider. We came from Odisha and initially from Rajasthan.
But as a someone who has invested and grown here, I can assure you that your investment will find not only opportunities, but also a dependable ecosystem for long-term success. Dependability, friends, we all know, today is a very rare phenomena. Everybody's opportunity is getting opportunities day by day. So we Chhattisgarhis assure that dependability in our state. I invite you all once again to visit and explore Chhattisgarh and become part of the state's new phase of growth. We look forward to welcoming you, many of you, to Chhattisgarh soon. Thank you very much. Jai Hind, Jai Chhattisgarh. Thank you so much, sir. And yes, once again, we would always need a double assurance. And what so if we have only one person sharing his experience? We have another industrialist who would like to talk about their experiences with the state of Chhattisgarh. But on a very lighter note or a very serious note, we would request you to kindly stick to the time as we are here for a given time. So I would like to request our MD and CEO, Square Business Service Private Limited, Shri Ravi Garu on stage. Please put your hands together as we welcome him. అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. నేను హైదరాబాద్ అబ్బాయినే. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. నేను ఫస్ట్ తెలుగులో ఎందుకు స్టార్ట్ చేశానంటే నేను మీ వాడిని మీలో వాడిని అని చెప్పడం కోసం స్టార్ట్ చేశాను. मैं यहाँ से आपके बीच में से अभी छत्तीसगढ़ में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ. मेरा एक बीपीओ कंपनी है और वी हैव स्टार्टेड दिस अबाउट अ कपल ऑफ इयर्स बैक. February में I was given the welcome letter by माननीय मुख्यमंत्री जी at his place and वहां से लेके 6 महीने में मुझे ऑफिस का स्पेस दे दिया गया था. एम गौतम रेड्डी जी, सीआईआई छत्तीसगढ़ के चेयरमैन आदरणीय श्री बजरंग गोयल जी, हमारे प्रदेश के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, इन्वेस्टमेंट कमिश्नर श्रीमती रितु सेन जी, हमारे वाणिज्य उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार जी, सभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ के आमंत्रण में पधारे सीआईआई के पदाधिकारीगण, उद्योगपतिगण और हमारे वाणिज्य उद्योग विभाग के छत्तीसगढ़ से आए सभी अधिकारीगण और मीडिया के बंधुगण, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और छत्तीसगढ़ के आमंत्रण पर आप सब लोग यहां पर पधारे हैं. हमारे सीआईआई के पदाधिकारीगण, हमारे उद्योगपति बहनों और भाइयों, आप सभी को मैं हृदय से आप लोगों का अभिनंदन करता हूं. और छत्तीसगढ़ के विषय में विस्तार से रितु सेन मैडम बताई हैं, लंबाई चौड़ाई तक भी बता दी है, एक एक चीज विस्तार से बताई हैं. और उद्योग नीति के विषय में भी हमारे रजत कुमार जी बताए हैं, जैसा कि हमारे मंत्री जी ने कहा है. और वास्तव में छत्तीसगढ़ देश के हृदय स्थल में बसा है, बीचों बीच बसा है और बहुत सुंदर प्रदेश है. एक जो परसेप्शन था कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित है, पूरे देश में छत्तीसगढ़ कहने से ऐसा लोगों को लगता था, लेकिन अब वो भी बात नहीं है. आप सबको मालूम है कि डबल इंजन की सरकार के कारण आज छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त करने में हम लोग कामयाब हुए हैं. अब छत्तीसगढ़ में आप कहीं भी कितनों समय भी रात में भी कहीं भी आ जा सकते हैं. आज ऐसा छत्तीसगढ़ हो गया है, प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत सुंदर
छत्तीसगढ़ है मतलब धरती का स्वर्ग भी कह सकते हैं। अनेकों वाटरफॉल्स हैं वहां पर, अबुझमाड़ जैसा लंबा चौड़ा फॉरेस्ट है। 44% भूभाग छत्तीसगढ़ का वनों से आच्छादित है, तो बहुत ही सुंदर प्रदेश है। और खनिज संपदा भी भरपूर है, लोहा, कोयला, बॉक्साइट सब कुछ छत्तीसगढ़ में है। सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं और वहां के लोग भी बड़े अच्छे हैं। हमारे एक वक्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो वास्तव में छत्तीसगढ़ के लोग बहुत भोले भाले और बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ है। और एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हम लोगों ने बनाई है। हमारे यहाँ पर वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं लखनलाल देवांगन जी, और हमारे विभाग के सभी अधिकारी हैं। सब लोगों ने एक अच्छी उद्योग नीति बनाई है, जिसकी सराहना सब तरफ हो रही है। देश और विदेश में भी हम लोग उद्योग नीति को लेके गए हैं, जापान, साउथ कोरिया वगैरह लेके गए हैं, और बहुत कम समय में करीब 8 लाख करोड़ का MOU हुआ है और धरातल में काम भी चालू हो गया है। तो ऐसी स्थिति है। और मैं जब बोलता हूं उद्योग के विषय में, तो अभी हमारे कई उद्योगपति अपना अनुभव यहाँ पर शेयर किए कि 6 महीना में किस तरह से उनका उद्योग वहां पर खड़ा हो गया। तो मैं भी एक चीज बोलता हूं कि एक इंदौर के उद्योगपति हैं जिनकी ससुराल भिलाई में है, और वो ससुराल आए और हम लोगों की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से इतने प्रभावित हुए कि उद्योग के लिए वहां पर भूमि पूजन करके वापस गए। तो ये आज हमारी उद्योग नीति में है। वहां पर कई तरह के इंसेंटिव का प्रावधान है, बी स्पोक की नीति है, सिंगल विंडो सिस्टम है, और किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं है। हम लोगों की बड़ी अच्छी टीम है, और किसी भी तरह से आप लोगों को न NOC लेने में न कुछ में कोई परेशानी नहीं है। छत्तीसगढ़ में सरप्लस बिजली है, पानी है, कभी वहां पर मजदूरों का हड़ताल नहीं होता है। लॉजिस्टिक के हिसाब से भी देखें तो आज बीच में होने के कारण सब तरफ एयर से भी आप घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में देश के किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं। भारतमाला में आपका रायपुर से विशाखापट्टनम, रायपुर से आपका धनबाद वो जुड़ रहा है। कार्गो की सुविधा हम लोग रायपुर से दे रहे हैं। तमाम तरह की ये सुविधा है, और इसलिए हम तो सारी जानकारी हमारे अधिकारियों ने दिया है। हम तो मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों को आमंत्रित करने आए हैं कि आप सब लोग छत्तीसगढ़ आए। आप लोगों को किसी भी तरह से परेशानी नहीं होगी। वहां पर निवेश करें और मिलकर हम लोग छत्तीसगढ़ का भी विकास करें। और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का, तो उसमें सबका योगदान बहुत आवश्यक होगा, और आप लोगों का तो रोल बहुत बड़ा रहने वाला है। तो छत्तीसगढ़ को भी विकसित करने के लिए हम लोग विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं, और उसमें उद्योग का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो आप सबसे मैं मुख्यमंत्री के नाते आग्रह करूंगा कि आप सब लोग छत्तीसगढ़ आए, पधारें, वहां पर देखें, निवेश करें। किसी भी तरह से आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, आप लोगों को खुशी ही होगी। और मैं समझता हूं सारी जानकारी रितु मैडम और रजत बंसल जी दे दिए हैं, इसलिए और किसी तरह से मुझे उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में रेड कारपेट बिछा हुआ है। आप सब लोगों का स्वागत है। मैं मुख्यमंत्री के नाते
आप सब लोग आज इस इन्वेस्टर कनेक्ट में पधारे। आप सब लोगों का छत्तीसगढ़ की तरफ से अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हुए और छत्तीसगढ़ की तरफ से आप सब लोगों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रण देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय तेलंगाना। Thank you so much, sir. Thank you so much. जी, आगे बढ़ते हैं and we would now proceed towards offering the invitation letter to our investors who have committed towards their investment. And इसी के लिए I would request our dignitaries on the stage कि वे सामने पधारें।